أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. Let me mute you guys. Sub mute ho gaye. Okay, so Alhamdulillah, last Thursday ko we completed up to ayah number 87 of Surah Al-Ma'idah. Inshallah, aaj hum start karenge ayah number 88 of Surah Al-Ma'idah. Ayah number 88. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. وَكُلُوا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فعل الامر ہے. اللہ is ordering, Allah is commanding, Allah is saying. کیا بول رہے ہیں ہم لوگوں کو سب کو؟ and وَكُلُوا and eat. ہم کو کہہ رہے ہیں and you eat. مِمَّا of that رَزَقَكُمُ اللَّهُ of the things یعنی مِمَّا of that یعنی of the things رَزَقَكُمُ اللَّهُ which Allah has provided. which لکھا میں یہاں پر لے which has provided Allah, لیکن آپ اس کو کہیں گے which Allah has provided. رَزَقَكُمْ which Allah has provided for you. Halalan tayyiba which is lawful, which is halal, and tayyiba which is pure and good. So which is lawful, which is halal, and which is good and pure. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا in running, and eat of the things which Allah has provided for you, lawful and good. یہ command ہے. اردو میں ہے اور کلو اور آپ کھائیں مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا ہے آپ کو اللہ نے حلالا طیبہ جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے. طیب کا مطلب ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے تو آپ سب کو معلوم ہے. واتقوا اللہ and be conscious of Allah, اور آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں. الذی the one in whom انتم you bihi mu'minun you are believers or you believe, and be conscious of Allah the one in whom you believe. اور آپ اردو میں اور آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں, اللہ سے ڈریں جس پر آپ ایمان لائے ہیں یا جس پہ آپ ایمان لاتے ہیں. whom you believe جس پہ آپ یقین رکھتے ہیں, جس پہ آپ ایمان لاتے ہیں. اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. وَكُلُوا and eat. آلریڈی ہم نے طیبات کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا کہ اب مجھے لگتا ہے اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک دو پوائنٹس یہی ہیں کہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کو صرف ریکیپ کرنے کے لیے, جسٹ ٹو ریٹریٹ, کیا چیز ہونا چاہیے طیب میں؟ our earning should be halal. ہماری جو انکم ہے, جو ارننگ ہے, جو کماتے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے. نمبر 1. وہ ہم نہیں سوچتے ہیں نارملی, ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ذبیحہ ہے, نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے کہاں سے آتا ہے وہ ذبیحہ خریدیں گے آپ کیسے؟ اٹ شوڈ بی حلال. تو the earning should be halal. نمبر 2, جو فوڈ آئٹم جو ہے that should not be حرام. نمبر 1 حرام نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھ لیا حرام کیا کیا چیزیں ہیں, اللہ نے جو گن کے بتا دیے, a few items which are prohibited, which are حرام, ان میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب جو حلال آپ کھا رہے ہیں that food should be حلال, clean, healthy and beneficial. صرف نہیں کہ حلال ہے, اس کو صاف بھی ہونا چاہیے, اس کو حلال بھی ہونا چاہیے, اس کو پیور بھی ہونا چاہیے, اس کو ہیلدی بھی ہونا چاہیے اور بینیفیشل بھی ہونا چاہیے. بعض دفعہ ہم کل ہی ڈسکس کر رہے تھے یا پرسوں کہ جن کو اگر کسی چیز سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور آپ کہیں نہیں, جیسے میٹھے کا ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر منع کیا ڈاکٹر نے, آپ کی شوگر لیول ہائی ہے یا پری ڈائبیٹک ہیں, تو پھر آپ اوائڈ کریں, کم سے کم آپ میٹھا کھائیں. لیکن ہم کہیں گے نہیں یہ تو حلال ہے, ہم کھا سکتے ہیں. اور پھر شہد کا, خاص کر شہد, تو اس میں تو شفا ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس شہد سے اس وقت آپ کی چیزیں میسڈ اپ ہوئی ہوئی ہیں آپ کے اندر, تو آپ اس کو بھی اوائڈ کریں, بہت تھوڑا سا لے لیں. اور پھر اس کے بعد لاسٹ چیز, لیکن جو بہت امپورٹنٹ ہے, اٹ شوڈ بی سلاٹرڈ ان دی اسلامک وے, کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے حلال آئٹم ہے, حرام حلال کمائی ہے, یہ ہیلدی بھی ہے, بینیفیشل بھی ہے, لیکن ایک پوائنٹ رہ جاتا تھا کہ اٹ شوڈ بی سلاٹرڈ ان دا اسلامک وے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کھاؤ جو اللہ نے آپ کو پرمٹ کیا, جو اللہ نے آپ کے لیے رزق مہیا کیا ہے, اور اس کو کھاؤ آپ, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ اور تقوی, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, دین اللہ تعالیٰ سیز واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کھانے پینے کو کس سے ریلیٹ کیا ہے؟ ہماری تقوی سے. کیونکہ ہر چیز میں آپ دیکھیں تقوی کے بغیر کوئی چیز بھی آپ نہیں کریں گے.
And what is taqwa? आपको अच्छी तरह मालूम है what is taqwa? Taqwa is avoiding the sins, avoiding the displeasure of Allah, or earning the pleasure of Allah by protecting yourself from sins. तो ये बहुत क्लियर है कि आप अपने आप को बचा रहे हैं, आप तकवा इख्तियार करें, यानी आप ये नहीं सिर्फ जब कह देते हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, क्यों डरो? इसलिए डरो कि अल्लाह क्या हर एक को डराने वाला है? नहीं, इसलिए कि हम अगर अल्लाह का गुस्सा खुद मोल लेंगे, we will earn the displeasure of Allah, उससे अपने आप को बचाओ. तो that is why Allah is saying वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही तुमिनून. और हम सब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम तकवा इख्तियार करेंगे, if we are conscious of Allah in all our affairs, सिर्फ खाने पीने का नहीं, all our affairs, and we obey him, हम अल्लाह की अताअत करेंगे, and we seek his pleasure, और अल्लाह की रजामंदी तलाश करेंगे, and we stay away from disobedience, और हम अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे, and we consume halal, and we stay away from haram. जब ये सारी चीजें हम करेंगे, only then, ये सब conditions हम पूरी करेंगे, then we would be true believers, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं जिसमें आप बिलीव करते हो तो आप ये चीजें करो. So may Allah make us from those जो कि अल्लाह को ओबे करते हैं, जो अल्लाह के प्लेजर को सीख करते हैं, अर्न करते हैं, और अल्लाह ताला हमें प्रोटेक्ट करे, हमें महफूज रखे फ्रॉम नाफरमानी से, फ्रॉम disobeying him, और अल्लाह के गुस्से को पुकारने से, incurring Allah's wrath. आमीन. सेकंड है आया नंबर 89. आया नंबर 89 इज ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी. अच्छा, अभी टॉपिक चेंज हो रहा है, ठीक है, खाने पीने को अभी छोड़ दो फिलहाल थोड़ी देर के लिए. ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़दतुमुल ऐमान फकफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमूना अहलिकुम व किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़ारतुन ऐमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू ऐमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून. अच्छी खासी लंबी आयत है, सो पे अटेंशन. इट्स एन इम्पोर्टेंट आया. हम काफी आयत को देखते हैं, बहुत लंबी है, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है. सबसे पहले अल्लाह ताला हमारे लिए एक मेहरबानी की बात करें. ला युआखिजुकुम, not will take you account, not will punish you. कौन? अल्लाह. not will punish you Allah, not will take you account Allah, बिल्लग़वी, for what is useless. love क्या चीज है? unintentional talk या useless talk. किसमें? फी ऐमानिकुम, in your oaths, in your oaths, in your pledges. So not will Allah take you to account or to punish you, or not will he punish you for what is useless talk or unintentional in your oaths. नहीं पकड़ेगा आपको अल्लाह लग़व. लग़व आपका लफ्ज आप लिखना, लव यानी क्या है? बेकार, गैर जरूरी बातें या गैर जरूरी, जो कि आपकी फी ऐमानिकुम, कस्मों में, आपकी कस्मों में, आपको अल्लाह ताला नहीं पकड़ेगा, आपकी लग़व या बेकार या गैर जरूरी कस्मों में आपको नहीं पकड़ेगा. ठीक है, क्लियर. वलाकिन, but युआखिजुकुम, he will take your account, or he will punish you बिमा अक़दतुमुल ऐमान, because of या for किस चीज के लिए? अक़दतुमुल ऐमान, for your deliberate oaths, for your intentional oaths. एक तो useless हो गया, बेकार हो गया, और एक deliberate हो गया, intentional हो गया. अब इसको उर्दू में करते हैं, इंग्लिश में फिर रिपीट करते हैं. but he will take you account, या take your account, या he will hold you accountable for your deliberate oaths. उर्दू में है, लेकिन वो पकड़ेगा आपको उन पर आपने जिन पुख्ता अहद किया है, जिन कस्मों में पुख्ता अहद किए, जिन कस्मों में आपने जो हल्फ उठाए, जो पुख्ता अहद किए हैं, जो डिलिबरेटली किए हैं, जो इंटेंशनली, जो बामकसद किए हैं, और जो कि इरादतन किए हैं. फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन. और क्या पकड़ेगा अल्लाह ताला? अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर आपने कसम खाई और उसके बाद अगर आपने तोड़ दी, तो अल्लाह ताला क्या करें? फ़कफ़ारतुहु, कफ़ारा आप सबको मालूम है, इट इज द एक्सपिएशन. सो इट्स एक्सपिएशन इज क्या चीज है? इत्आमु अशरति मसाकीन, टू फीड 10 पुअर या नीडी पीपल. सो क्या एक्सपिएशन है? कि अगर आपने कसम तोड़ दी तो आप क्या करेंगे? टू फीड 10 नीडी या 10 पुअर पीपल. उर्दू में है तो उसका कफारा है खाना खिलाना 10 मिस्कीनों को. और कैसा खाना खिलाएं? मिन औसती मा तुतइमूना अहलिकुम,
min awsat of the average. Average होता है कि जो आपका एक high और एक low होता है और बीच में एक average होता है, उन दोनों को आप divide करो, maximum minimum को, तो average. आपको मैं divide करने को और multiply करने को नहीं सिखा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ average जो रोजाना का हम यूज करते हैं अपने खाने में, min awsat of the average of ma tut'imuna ahlikum, of what you feed your families. Ahlikum, your family. Tut'imuna, you feed, ahlikum, your families. औसत दर्जे का हो, देखें इसमें भी औसत है और उर्दू में भी औसत कहते हैं, औसत दर्जे का खाना हो जो आप खाना खिलाते हैं अपने घर वालों को, अपने घर में जो हम खाते हैं. अच्छा, सेकंड चॉइस क्या है, और किस वतुहुम, और यू क्लोथ देम, या उनको कपड़ा दें, उनको कपड़ा दें. इसको फिर डिटेल में पढ़ लेंगे. और तहरीरु रकबा, और फ्री अ स्लेव, या एक गुलाम आजाद करना. तो एक हमने 3 ऑप्शंस पढ़ लिया, तफसीर में इसकी डिटेल देखेंगे. फमन लम यजिद, फमन, but those who lam yajid, cannot find, wajada yajidu, cannot find, yani cannot afford the financial means, आप कह लें, who cannot afford कह लें. So but who cannot find the financial means or who cannot afford, fasiyamu, then he or she should fast salasati ayyam, for 3 days. अगर वो नहीं, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो 10 लोगों को खाना खिलाए या वो 10 लोगों को कपड़ा पहनाए, तो क्या करे, वो फिर 3 दिन के रोजे रख ले. दिस इज द थर्ड ऑप्शन. लेकिन जो नहीं पाए इस्तेतात, उर्दू में है, लेकिन जो नहीं पाए इस्तेतात, तो वो रोजे रखे 3 दिन के. ज़ालिका कफ़ारतु ऐमानिकुम, that is, लेकिन that लिखा होता है, it means this is, that this is the कफ़ारतु, this is the expiation for what? ऐमानिकुम, for the oaths, इज़ा हलफ्तुम, when you have sworn, जब आपने कोई कसम खा ली है कि मैं ये करूंगी या मैं नहीं करूंगी, उसका कफ़ारा ये है. वहफ़ज़ू ऐमानकुम, and protect your oaths. ये अल्लाह ताला के सारे अहकाम हैं. और फिर उर्दू में भी रिपीट कर दूं, ये कफारा है आपकी कसमों का, जब आप कसम खाएं या जब आप कसम लें, आप अपनी कसमों की हिफाजत करें. उसके बाद है कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, thus Allah makes it clear to you, युबय्यिनु makes it clear, Allah lakum, to you, या for you, आयातिही, his ayat, लअल्लकुम तशकुरून, so that you may be grateful. उर्दू में होगा, फिर रनिंग में है, thus Allah makes clear to you his ayat so that you may be grateful. और उर्दू में होगा, इसी तरह खोल कर बयान करता है अल्लाह आपके लिए, खोल कर बयान कर, युबय्यिनु, तो इसी तरह खोल कर बयान करता है अल्लाह आपके लिए अपनी आयत को, ताकि आप, रीजन क्या है, ताकि आप शुक्र करें. अब हम देखते हैं इसकी तफसीर क्या है. तफसीर में है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली बताया है. देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह विल नॉट टेक पीपल टू टास्क फॉर देयर ओथ्स, जो कि उन्होंने बगैर किसी थॉट के, डिलिबरेटली नहीं किया है, कॉन्शियसली नहीं किया है, विदाउट कॉन्शियसली डिसाइडिंग कि मैं कसम खा रही हूं कि मैं ये करूंगी या नहीं करूंगी, जो कि वैसे ही थॉटलेसली, हाफ कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली कोई भी अगर इस किस्म की कोई कसम उठा के बस मैं आइंदा ये नहीं करूंगी, जो कि हम चलते फिरते करते रहते हैं, ठीक है ना. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अच्छा, ये लव मैंने आपको बताया, ये सेवरल तरीके से यूज होता है. लव का मानी तो मैंने आपको बताया यूजलेस होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि इनएफिशिएंट है. कोई ऐसी कसम है, लव का मतलब ये कि इट इज इनएफिशिएंट, इट इज, ये मतलब इसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसकी कोई मकसद हल नहीं होगा, काउंटलेस, यानी कि इसकी तादाद भी कुछ नहीं होती, आप चलते फिरते इसको यूज करते हैं. ये हम खासकर ओथ के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि वो यूजलेस ओथ है, वो इनएफिशिएंट ओथ है, वो काउंटलेस है, चलते फिरते कहते हैं नहीं मैं नहीं करूँ, मैं वो नहीं मैं करूँगी, मीनिंगलेस है, यानी उसका कोई खास मतलब ही नहीं है. आइडल टॉक मतलब वैसे ही जिसको कहते हैं ना बेकार बात, उर्दू में उसको कहते हैं बेकार बात. तो एक बंदा किसी चीज को ना डिलिबरेटली चाह रहा हो, he didn't mean it or she didn't mean it, लेकिन उसके मुंह से कोई बात निकल आती कि बस आइंदा मैं नहीं करूँ. मेरे साथ हो चुका है एक दफा. तो उस वक्त आप ये कह दें किसी को मैं कोई मशवरा दे रही थी और उसने मुझे कुछ कहा कि आपके लिए बस मैं ही रह गई हूँ मशवरा देने के लिए, तो मैंने गुस्से में कह दिया, मैंने एकदम से कहा, मैंने कहा कि बस आइंदा मैं कभी भी जिंदगी में तुमको मशवरा नहीं दूंगी ना. अब मैंने वो कह तो दिया, लेकिन देखना, मुझे ऐसे लगा कि मैंने, इट वॉज अ स्टेटमेंट, इट कुड बी अ कसम, हो सकता है मैंने क्या लफ्ज़ यूज किया था, हो सकता है मैंने कह दिया कि
अच्छा ठीक है मैं कसम खाती हूँ, आई डोंट रिमेम्बर, नॉर्मली कसम तो हम खाते नहीं है, लेकिन हो सकता है मैंने कर दिया, फिर मैं डर गई, मैंने कहा ये मैंने कर दिया और कल को अगर मैं कोई मशवरा दूंगी फिर क्या होगा, क्योंकि अपने से छोटे हैं, अपनी फैमिली के हैं, तो उनको देना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने उसके लिए, मुझे पता है कफारा देना था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिस्कीनों के लिए खाने का इंतजाम कर दिया। सो इट वाज समथिंग व्हिच आई अटर्ड स्पॉन्टेनियसली, व्हिच आई रियली डिडंट मीन, लेकिन आई हैड टू डू इट बिकॉज आई वांटेड टू पुट एन एंड टू दैट कॉन्वर्सेशन। तो ऐसे वर्ड्स हम लोग अनइंटेंशनली बोल भी देते हैं, आउट ऑफ हैबिट भी बोल देते हैं। कुछ लोगों की आदत है वो बोलेंगे नहीं नहीं कसम से ये, कसम से वो, कसम से ये करूंगा, कसम से ये क्या, ऑल द टाइम बोलते रहते हैं विदाउट मीनिंग। जैसे अरबी लोग हर बात में नहीं कहते वल्लाही वल्लाही वल्लाही, हर बात में कहते हैं। इवन आप बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चे, तुमने नहीं किया, आई स्वेयर मैंने नहीं किया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सब बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं आई स्वेयर, नहीं नहीं कसम से मैंने नहीं किया। तो ये सीरियस ओथ्स नहीं है, और अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि we will not be held accountable for these। लेकिन स्टिल क्या मतलब ये कि अल्लाह ताला ने हमें खुली छुट्टी दे दी है कि बस आप जो मर्जी जब मर्जी आप यूजलेस वर्ड्स अटर किया करो? नहीं, we have to be very careful। हम अपने ओथ्स के, we cannot devalue our oaths, we cannot utter too many of them without any thought, without having a deliberate intention। So then Allah says walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman, walakin means but, यानी कि लेकिन अल्लाह ताला क्या करेंगे, युआखिजुकुम, he will punish you बिमा अक़दतुमुल when you take deliberate oaths, जबकि आपने कसम खाई है किसी चीज के बारे में, और ये oaths वो हैं जो कि consciously आपने खाई है, you've done it intentionally, you have done it deliberately, when you are sure about what you are saying, जब आपको मालूम है कि आप जो कह रहे हैं कि ये 100% मैंने ये करना है। तो ये वो ओथ्स हैं जिसमें ये हो सकता है कि आप एक ये कसम खा लें कि मैं इस चीज में मैं कभी भी हिस्सा नहीं लूंगी, जो कि अच्छी चीज है, पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग गुड हो, और उसमें आप एक ओथ ले लें कि मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगी, मैं तो ये कभी भी नहीं करूंगी। और या समथिंग विच इज इवल और हार्मफुल, और आप कहें मैं तो ये करूंगी। ये दोनों किस्म के हो सकते हैं ना, एक वो ओथ जिसमें हार्मफुल हो, जो इवल हो, और एक वो ओथ हो जो अच्छा था, अच्छी चीज है, लेकिन आप अपने आप को यू आर saying depriving yourself of it। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु सेड कि ये इस कनेक्शन में रिवील हुआ था, जब आपको याद है पिछली दफा पढ़ रहे थे कि दो सहाबा हु हैड टेकन ओथ, जिसने अपने आप को प्रोहिबिट किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स को जाके पूछ के कि हम सारी रात इबादत करेंगे, हम सारा साल रोजा रखेंगे, और हम अपनी बीवियों के पास, हम शादी नहीं करेंगे या बीवियों के पास नहीं जाएंगे, व्हाटएवर, शादी नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने ये कर लिया था, ऐसी कस्में ले ली थी, तो और उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे, उन्होंने तो कस्में ले ली कि हम ये नहीं करेंगे, डिलिबरेटली ली थी, बट जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड देम कि ये आप गलत कर रहे हैं, मैं रात को सोता भी हूँ, जागता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, इबादत भी करता हूँ, मैं रोजे रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ, और मैं शादियां करता भी हूँ, और मेरी बीवियां और मैं उनके साथ मेरी रिलेशनशिप है। जब ये सारी बातें क्लियर हो गई, और उसके बाद तो हो गया ठीक है, लेकिन जब ये आयत आई, जब ये नहीं अभी सॉरी ये आयत नहीं आई थी, उसके बाद जब वो लोग घबरा गए, उन्होंने कहा कि अगर हमने अपनी कस्में तोड़, हमने तो कसम किया लिया हुआ है, अब अगर इफ वी ब्रेक आवर ओथ्स तो क्या होगा। तो वो बहुत डर गए, वो घबरा गए। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने कहा व्हाट शुड वी डू विद आवर ओथ्स, हम क्या करें, हम अब क्या करेंगे, हमने तो कसम खा ली। जब उन्होंने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा, तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई जो अभी हम पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 89, कि अल्लाह ताला ने कहा अगर उन्होंने वैसे ही कस्में खाई थी जो कि लव थी, तो उनपे उनकी कोई भी कैच नहीं होगी। लेकिन इफ दे हैव टेकन अ डिलिबरेट इंटेंशनल ओथ, इट इज अ वेरी वेरी सीरियस स्टेटमेंट। जब आप कसम खाते हैं, वी मस्ट अबाइड बाय इट। अगर हमने वो कसम खा के तोड़ दी तो हम गुनाहगार होंगे, वी वुड बी सिंफुल। लेकिन अगर हम ऐसी कोई ओथ हमने ले ली जिसमें बजाते खुद एक गुनाह है, जैसे उन्होंने जो ओथ लिया उसमें बजाते खुद गुनाह था, देन वी शुड नॉट अबाइड बाय इट। हम उसमें फिर उसको पूरा ना करें। इंस्टेड हम क्या करें कि अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि हमने गुनाह कर दिया और हम उसको अब उस गुनाह से अपने आप को हटाना चाह रहे हैं, तो हम वो ओथ जो हमने ली थी, दैट ओथ दैट वी टुक, हम अल्लाह टू अर्न अल्लाह's pleasure, वी मस्ट ब्रेक दैट ओथ, वी मस्ट ब्रेक दैट ओथ। बट व्हेन वी ब्रेक दैट ओथ, उसके लिए क्या करना है, कफारा करना पड़ेगा। और वो आपने अभी देखा वर्ड फॉर वर्ड में कि 3 ऑप्शंस दिए हुए। नंबर 1 क्या है, 10 नीडी या पुअर पीपल को वो खिलाओ जो आपकी फैमिली का एवरेज है,
ठीक है ना, यानी उसका मतलब ये कि उनको 2 meals ऐसे खिला दो, उनको खाना खिलाने का मतलब 1 meal नहीं है, 2 meals है, खाना खिलाना 1 दिन का है, उसका मतलब एक सुबह का एक शाम का 2 meals उनको खिलाओ, टू व्हाट वी सर्व आवर ओन फैमिली, जो हमारी फैमिली को हम सर्व करते हैं खुद ही, उसका एवरेज। ये नहीं है कि वो चलो गरीब है उसको तो हम 50 रुपए दे दें वो अपना खा लेगा, कोई बात नहीं, नहीं, उसका मतलब ये नहीं है, या उनको सस्ता खाना दे दो, या चीप फूड या रॉटन फूड उनको दे दो, बचा हुआ खाना दे दो, भाई हमने तो कफारा देना है तो हम ये हमारे घर का खाना है हम इसको दे रहे हैं, जो कि पड़ा हुआ था 10 दिन से आपके फ्रिज में। यू कांट डू दैट, you just can't do that. It has to be good quality, it has to be the same standard, जो कि एक decent meal जिसको कह सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड अ डिसेंट मील, जैसे कि जो हम अपने घर में एवरेज खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, और किस्वतुहुम यानी और क्लोथ देम, यानी वही 10 लोगों को आपने खाना नहीं खिला रहे हैं तो आप 10 लोगों को कपड़ा दे दें। एंड द सेम रूल अप्लाइज टू क्लोथिंग, ये नहीं है कि शैबी टॉर्न पुराने फट्टे पुराने कपड़े उठा के किसी को दे दो, जिसको आपने 10 साल पहना हो, आप उस 10 साल तो आप पहनते भी नहीं, आप लोग 1 साल पहनेंगे दूसरे साल उठा के दे देते हैं, तो शायद वो इतने खराब भी ना हो, लेकिन देखा है मैंने फट्टे पुराने कपड़े उठा के गरीबों को पकड़ा देते हैं। तो वो कपड़े ना शैबी होना टॉर्न होना कुछ हो, वो हो जो कि आप अपनी फैमिली मेंबर के लिए खरीदें, अपने लिए खरीदे, अपनी फैमिली मेंबर के लिए खुद, यानी फैमिली मेंबर मतलब अपने लिए भी अगर आप खरीदें, इसका मतलब 10 कंप्लीट आउटफिट्स होने चाहिए। ये नहीं कि मैंने कमीज पकड़ा दिया, मैंने शलवार पकड़ा दिया, मैंने दुपट्टा पकड़ा दिया, मैंने ट्राउजर पकड़ा दिया, मैंने शर्ट, नहीं, इट शुड बी सच दैट इट शुड कवर द पर्सन्स औरा। अगर वो मर्द को आप दे रहे हैं या औरत को, जिसको भी दे रहे हैं, इसमें एक स्पेसिफाइड नहीं है कि मर्द को दें या औरत को दें, जिसको भी दे रहे हैं इट शुड बी अ कंप्लीट औरा, ताकि इतना हो कि वो औरत अपने आप को पूरे जिस्म को ढांप सके या उसमें नमाज पढ़ सके, या लिखा हुआ नहीं है स्पेसिफाई यहाँ पर नहीं, लेकिन आप खुद सोच लें जब आप किसी को कपड़े दे रहे हैं तो ऐसे कपड़े देना जिसमें पूरी कंप्लीट औरा उसकी आ जाए, या मर्द है तो वो भी ऐसी नहीं कि उसको खाली एक टी शर्ट पकड़ा दें या खाली एक शॉर्ट्स पकड़ा दें, उसको भी इतना हो कि वो अपनी पूरी औरा को कवर कर सके। और तीसरी ऑप्शन की है और तहरीर रकब, और टू फ्री अ स्लेव। अब अगर किसी के पास स्लेव है उसकी कस्टडी में, या अगर कोई ऐसे को जानता है जिसके पास कोई स्लेव है, तो फिर उसको फ्री कर दे, या उसके बदले उसको पैसे देके और उस स्लेव को फ्री करा दे। बट वी नो अब तो हमारे पास स्लेवरी नहीं है, आई मीन है डिफरेंट किस्म की स्लेवरीज हैं, हमारी कंट्री में भी हैं, कुछ लोगों ने खरीद के रख लिए हैं औरतों को, लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो स्लेव की है, वो मेरे और आपके पास नहीं है, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट से ये बाहर है। बट देयर इज दिस प्रोविजन इन द कुरान एंड अल्लाह इज टेलिंग अस कि इफ यू हैव अ स्लेव और यू कैन फ्री अ स्लेव, यू कैन डू दैट। फिर अल्लाह गिव्स अनदर ऑप्शन, फमन लम यजिद, that whoever does not have the means, जो नहीं you cannot find the means, you cannot afford, तो फिर आप क्या करें, फस्तियामु सलासति अय्याम, then he should fast for 3 days। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिका कफ़ारतु ऐमानिकुम इज़ा हलफ्तुम, एंड ये एक्सपिएशन है आपकी ओथ की जो कि आपने कसम ली थी, कसम खाई थी, ठीक है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वहफज़ु ऐमानकुम, एंड प्रोटेक्ट योर ओथ्स। क्या मतलब हुआ, बी माइंडफुल ऑफ योर ओथ्स, इसके भी चंद मीनिंग्स हैं। नंबर 1 ये है कि आप अपने ओथ का प्रॉपर यूज करो, वह फजू, इसमें नहीं कि आप प्रोटेक्ट करो, यानी आप प्रॉपर यूज ऑफ ओथ करो, अपने ओथ करो, आप ये नहीं कि आप उसको थॉटलेसली प्लेफुली या सिंफुली बस आप जब मर्जी करो। वन शुड नॉट हेसन टू टेक अ ओथ। अब जैसे मैंने उस दिन जल्दी में आपको बताया ना, कुछ कई साल पहले की बात है, लेकिन मैंने कह दिया कि बस ठीक है, मैं हो सकता है, मैंने कहा मैं कसम खाती हूँ मैं आइंदा नहीं करूंगी, मैंने कह दिया। वी शुड नॉट डू दैट, कभी भी हेसन नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है, तो आप लोग भी सोचें कि आप लोग को हेसन नहीं करना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए टू टेक अ ओथ। ओथ मत लें, आप ऐसे ही कहते हैं मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये ना करूं, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ सेइंग इट। और फिर दूसरी बात यह है कि ऐसा ओथ ना लें, कोई ऐसी कसम ना खाएं जो कि इस्लामिकली साउंड नहीं है। सबसे बड़े आप देखें, क्योंकि ओथ बहुत सीरियस है, जब लेना है सीरियसली लें, मजाक करके ना ले, हंसी मजाक ना उड़ाएं, ये बहुत सीरियस है। दूसरी बात ये कि अपने ओथ को फॉरगेट नहीं करना है। आपने ओथ तो ले लिया, अब ओथ के बाद आप भूल गए, अब भूल ही गए, भाई मैंने तो कभी कसम खाई थी, मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो भूल गई हूँ। नहीं, बिकॉज अगर आपको ओथ याद है, अगर आप ओथ को याद रखेंगी तो आप उसको ब्रेक भी नहीं करेंगी अगर वो साउंड है। और जब अगर आप साउंड ओथ लेंगी कोई भी विच इज इस्लामिकली साउंड, तो यू मस्ट फुलफिल इट, ये भी कंडीशन है, उसको ब्रेक नहीं करना, उसको तोड़ना नहीं, अनलेस देयर इज अ फिजिकल नेसेसिटी या लीगल नेसेसिटी।
फिजिकल नेसेसिटी भी हो सकती है कि आपने कहा मैं ये नहीं खाऊंगी या मैं खाऊंगी, और उसके बाद आपकी नेसेसिटी हो गई कि नहीं, यू हैव टू ईट इट, मैं तो कभी भी ये नहीं कर, एंड यू विल हैव टू, उसके लिए आपको तोड़ना पड़ेगा। या लीगल कोई ऐसी बात हो गई, कोई शरई या कानूनी ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आपको ओथ तोड़ना पड़ जाएगा। सो इफ यू ब्रेक यू मस्ट पे द पेनल्टी, ये याद रखिए, कफारा देना जरूरी है। आप ब्रोकन ओथ को रख नहीं सकते विदाउट पेइंग द पेनल्टी। अगर पेनल्टी नहीं दिया उसका मतलब यह है कि आपने अपनी पनिशमेंट अपने लिए आगे भिजवा दी। यहाँ तो कोई आपको नहीं पकड़ेगा। यहाँ तो अगर आपने कसम खाई और कसम तोड़ दी, कौन आके उसको आपको ले जाएगा जेल में? कोई भी नहीं ले जा सकता है। सो you should never break your oath without any reason, और अगर आपने कर दिया तो आप पेनल्टी जरूर दें। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं एंड में, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, कि दिस इज हाउ अल्लाह मेक्स हिज कमांड्स क्लियर फॉर अस। और क्यों क्लियर? लअल्लकुम तशकुरून, सो दैट यू मे बी ग्रेटफुल, ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब इसमें शुक्र अदा करने की क्या बात है? आप मुझे बताइए क्या बात है? बात यह है कि why be grateful? Because अल्लाह ताला ने बता दिया कि he will not hold us accountable for what slips from our mouth unconscious. नंबर 1 तो ये ग्रेटफुल है। नंबर 1 कि अल्लाह ताला हमारी चलती फिरती यार कसम से ये और वल्लाही ये और आई स्वेयर, इन सब पे अल्लाह ताला नहीं पकड़ेंगे। ऑल्सो हमें ग्रेटफुल क्यों होना है अल्लाह को? बिकॉज इट इज अ ह्यूज फेवर ऑफ अल्लाह अपॉन अस कि अल्लाह ताला ने हमें ऑप्शन दे दिया कफारा का। अगर ये ऑप्शन नहीं होता एक्सपिएशन का, तो हमें हमारी गुनाहों की सजा मिलती कब? आखिरत में जाके। दुनिया में भी अल्लाह दे सकता है, लेकिन आखिरत में जाके तो जरूर होती। हमने कसम खाई और कसम तोड़ दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। दिस इज द मर्सी ऑफ अल्लाह कि अल्लाह ने हमारे लिए एक रास्ता ढूंढा है, हमारे लिए एक रास्ता प्रोवाइड किया है, मुयस्सर किया है, ताकि हम अपने आप को फ्री कर लें फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ द हेल फायर। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, next ayah is ayah number 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. या अय्युहल्लज़ीना आमनु, किसको कह रहे हैं अल्लाह ताला? मुझे और आपको। या अय्युहल्लज़ीना, ओ यू दोज़ हु बिलीव, या अय्युहल्लज़ीना दोज़ हु आमनु, दोज़ हु बिलीव। फिर अल्लाह कुछ चीजों के नाम ले रहे हैं। इन्नमा यानी दिस इज इंडीड, ये जरूरी है, दिस इज एक्सक्लूसिव, दिस इज देयर इज नो अदर वे। खम्र वल मैसिर, खमर वल मैसिर, अभी डिटेल में जाएंगे हम खमर और मैसिर क्या चीज होती है। अभी आप सिर्फ लिख लें, खमर का मतलब है इंटॉक्सिकेंट, सिंपल लैंग्वेज में उसको कहेंगे इंटॉक्सिकेंट्स। सो ओ यू दोज़ हु बिलीव, इंडीड इंटॉक्सिकेंट्स, एंड मैसिर, मैसिर क्या है? गैम्बलिंग भी है, गेम्स ऑफ चांस भी है। और क्या कह रहे हैं? वल अंसाबु वल अजलामु, and ansab sacrificing on altars, wal azlam and arrows for seeking luck or making decisions. Rijsum min amal shaitan, rijsun का मतलब है are filth, they are filth, they are despicable, and they are min amal shaitan, from the horrible works of Satan. अब इसको उर्दू में करते हैं, पहले इंग्लिश में पूरा रनिंग बता दूं। ओ यू दोज़ हु बिलीव, इंडीड इंटॉक्सिकेंट्स एंड गैम्बलिंग या गेम्स ऑफ चांस एंड सैक्रिफाइसिंग ऑन अल्टर्स एंड एरोज आर डेस्पिकेबल या हॉरिबल वर्क्स ऑफ शैतान। ठीक है ना? दे आर फिल्थी हॉरिबल वर्क्स ऑफ शैतान। उर्दू में लिखते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, बेशक शराब, शराब का लफ्ज नहीं है, नशा, इंटॉक्सिकेंट मीन्स नशा, ठीक है ना, असल में जो आपको नशा आवर चीज। लेकिन उर्दू में जब कॉमनली इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वी से शराब। एंड मैसिर, मैसिर को हम उर्दू में अगर सिंपली ट्रांसलेट करते हैं तो वी से जुआ, शराब और जुआ। और तीसरी चीज क्या थी? अल अंसाब वल अजलाम। अंसाब क्या है? बुत, यानी और बुत पे और सैक्रिफाइस करना, बुत के या बुतों पे के पास सैक्रिफाइस करना। और फाल के तीर, फाल के तीर, अजलाम जो है फाल के तीर। और ये क्या चीजें हैं? दे आर रिज, ये नापाक चीजें हैं। और किस में से? अमल में से हैं, शैतान के अमल में से हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? हुक्म दे रहे हैं, फेलुल अमर है। अल्लाह कह रहे हैं ये चीजें हैं, पहले हमें बता दी। उसके बाद अल्लाह कह रहे हैं फजतनिबूहु, सो स्टे अवे फ्रॉम देम, लअल्लकुम तुफ्लिहून, सो दैट यू मे बी सक्सेसफुल या सो दैट यू मे अटेन सक्सेस। फजतनिबूहु, इसके रूट लेटर्स क्या हैं? जीम नून बा, इजतनबा यजतनिबु इजतिनाबुन, इजतनबा यजतनिबु इजतिनाबुन। कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 8।
जैसे इस्तगफर यस्तगफिरु इस्तिगफारुन, इसी तरह ये भी फॉर्म 8 है। तो अल्लाह ताला कह रहे स्टे अवे फ्रॉम इट, इससे दूर रहो। क्यों? ताकि तुफलिहून, ताकि आप फला पाएं। उर्दू में क्या कहेंगे? बस दूर रहो इससे, बचो इससे। जब दूर रहे तो क्या करना है? बचना है आपने इससे, ताकि आप फला पाएं। आप इससे बचें ताकि आप इससे फला पाएं। इसकी तफसीर अब देख लेते हैं। इस आयत में देयर आर 4 थिंग्स जिसको कैटेगोरिकली अल्लाह ने प्रोहिबिट किया, अल्लाह हैज मेड इट हराम। देखते हैं इन एक एक की मीनिंग क्या है। अब मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। खमर, खमर के रूट लेटर्स हैं खा मीम रा, खा मीम रा। इसका मतलब है किसी चीज को कवर करना। यहाँ पर इसका मतलब है विच, खमर का मतलब है विच कवर्स द इंटेलेक्ट, आपकी अकल को कवर करता है। इट कवर्स द माइंड, it blocks your reasoning, it blocks your judgment, it affects your sanity। सब कुछ चीजें ये क्या होती हैं? खमर से होती हैं। और हम सबको मालूम है, ये हमें एक दूसरे को बताने की जरूरत है। But since we are on that ayah of the Quran, we have to, in the tafsir, we have to explain, because हो सकता है मुझे और आपको मालूम है और किसी को नहीं मालूम हो। तो खमर क्या चीज है? खाम इमरा, it covers the intellect, it covers the mind, it blocks the reasoning। आपकी सोच समझ को भी वो इंटरफियर करता है और आपकी सोचने समझने की कुव्वत को खत्म कर देता है, आपकी रीजनिंग को, आपकी अकल को वो खत्म कर देता है, आपकी जजमेंट, आप जो फैसला करते हैं वो भी आप देखिए। शराब के नशे में कोई क्या फैसला करेगा, या किसी भी नशे में क्या फैसला करेंगे? तो वो क्या होता है? वो इनसेन फैसला करेगा। उसकी सैनिटी को, उसकी जो होशमंदी है उस पे वो कवर कर देता है। इसमें वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो कि नशा आवर कहलाती हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो इट इज समथिंग टू स्मोक, कहते हैं ना वो स्मोक करो, वो स्मोक करने में भी नशा है वो हो, या समथिंग टू स्मेल, लोग खाली सूंघ के भी नशा लेते हैं, और समथिंग टू चू और ईट, जो लोग चबाते खाते हैं, चूइंग जो चीजें होती हैं, वो भी तमाम इंटॉक्सिकेंट, तमाम नशा आवर चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। लोग कहते हैं ना कहाँ लिखा है? ड्रग्स का नाम लिखा हुआ है क्या कुरान में? ड्रग्स का नाम नहीं लिखा। इंटॉक्सिकेंट में ये जो है लफ्ज खमर, इसमें सारी चीजें आ जाती है। सो व्हाटएवर कैन ओवरकम द माइंड ऑफ अ पर्सन, वो क्या होता है? वो खमर कहलाता है। और जब एक आदमी इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, नशे में हो जाता है, इट ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मैं आपको एक एग्जांपल तो मुझे याद है, मेरी बचपन की या थी, या पता नहीं जवानी की थी, उस वक्त की एक आदमी था, वो बहुत ड्रिंक करता था, हमारे नेबरहुड में थे, वो बहुत ड्रिंक करते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो हमारे एक बहुत बड़ी दावत चल रही थी, बहुत मतलब हाई लेवल की अच्छी दावत चल रही थी, उसमें सब थे और हम सब भी उसमें थे। और वो आदमी जो है उनको वो कहते थे कि मैं ड्रंक नहीं होता, एंड सडनली कम्स इनटू दैट दावत इन इतनी सी शर्ट पहनी हुई है और नीचे नाइट सूट का पजामा पहना हुआ है, इतनी फॉर्मल दावत थी, और वो उसमें चले आए। वो आके और बातें बहकी बहकी कर लगे। तो ऐसा बंदा, इसीलिए कहते हैं ना ये नशे में ये बहकी बहकी बातें कर रहा है, ये वही तो आ गया, और फिर उल्टी सीधी बातें, फिर उनको हटाना पड़ा अच्छे तरीके से, आराम से। लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं पीता हूँ लेकिन मैं ड्रंक नहीं होता। डजंट मैटर वेदर यू गेट ड्रंक और नॉट, यू आर हैविंग समथिंग व्हिच इज फॉरबिडन। तो वो अपने आप को भी हार्म कर सकता है और दूसरों को भी हार्म कर सकता है। अभी देखें उसने, इसीलिए तो यहाँ भी रूल्स है ना, हर जगह पे रूल्स हैं, लॉज हैं, जिसमें है कि ड्रंक ड्राइविंग नहीं करो, इतने से ज्यादा अल्कोहल आपके ब्लड में नहीं होना चाहिए। इसलिए जब एक्सीडेंट होता है तो उसी वक्त टेस्ट करते हैं। व्हाट डू दे फाइंड? दे फाइंड द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन योर ब्लड। तो एक ट्रू बिलीवर अगर है, मैं और आप, अगर हम अपने आप हम क्लेम करते हैं कि हम ट्रू बिलीवर्स हैं, हम इस्लाम पे चल रहे हैं, तो हाउ कैन वी फॉल फॉर इंटॉक्सिकेंट्स? हम कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हम ऐसी चीज अपने सिस्टम में डालें कि जिसने हमारी बॉडी को भी वेस्ट किया, हमारे माइंड को भी कवर किया, हमारे टाइम को भी वेस्ट किया, और हमने खुद भी हार्म उठाया और दूसरों को भी हार्म किया। बाय द वे, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक चीज इसमें ऐड करना चाह रही थी कि जो हम खमर कह रहे हैं ना, ये है कवर्स द इंटेलेक्ट। खिमार का लफ्ज क्या है? खिमार, खिमार मीन्स, इसके भी वही रूट लेटर्स है, खाम इमरा, सेम थिंग खमर से, एंड इट मीन्स अ हेड स्कार्फ, जिसको हम आजकल हिजाब कहते हैं। बिकॉज वो क्या करता है? वो हमें कवर कर रहा है। वो खमर इंटेलेक्ट को कवर करता है, ये हमारे हेड को कवर करता है, खिमार। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहाँ कुरान में लिखा है कि सर पे हिजाब पहनो? नहीं, कुरान में हिजाब का लफ्ज सर के लिए नहीं आया, बिकॉज अरबिक में हिजाब का लफ्ज सर के लिए यूज ही नहीं होता है। किस लिए यूज होता है? व्हाट डज हिजाब मीन? हिजाब एक्चुअली मीन्स अ बैरियर, हिजाब मीन्स अ पार्टीशन। तो पार्टीशन, जैसे दरिया में भी, समंदर के लिए भी अल्लाह ताला ने बताया कि देखें बीच में हिजाब है, ये ठंडा पानी, ये मीठा पानी और खारा पानी नहीं मिलते हैं। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं बरज़ख में और हमारे में भी हिजाब है, तो हम उससे दूर हैं, देयर इज अ पार्टीशन।
इट मीन्स के पार्टीशन है। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सहाबा जाते थे तो उनको कहा कि जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कुछ मांगते हैं तो ऐसी उठ के चले मत जाए उनके सामने, यू गो एंड आस्क फॉर इट बिहाइंड द हिजाब। तो वो हिजाब पार्टीशन है। तो जो इस्लाम में यूज वर्ड हुआ है, अरबिक में जो वर्ड है दैट इज खिमार, और इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि आप अपने खुमुरिहिन्ना, जो आपका हेड स्कार्फ है, वो औरतें जो है वो अला जुयूबिहिन्ना, वो पहले जो है हेड स्कार्फ ऐसे पीछे जाते थे ना। आपने जो तस्वीरें देखी होंगी जितनी भी, चाहे वो पुराने जमाने की, चाहे जूस हैं चाहे क्रिश्चियंस हैं, उन सब के ऐसे बंदे में जब ये लोग मरियम अलैहिस्सलाम की भी तस्वीर बनाते हैं तो उसके ऊपर भी हिजाब डालते हैं, बट इट गोज लाइक दिस बिहाइंड। जैसे कि हमारे पास शटल कॉक का बुर्का होता है जिसको पीछे डाल के चलते हैं, या आजकल लड़कियां बाज दफा हिजाब ऐसे पहनती हैं कि सारा सारा उनका जिस्म दिख रहा होता है, लेकिन उन्होंने ऐसे मिकी माउस हिजाब पहना होता है पीछे जाते हुए। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने उस वक्त हुक्म दिया बहुत क्लियरली कि ये जो आपके हेड स्कार्फ हैं, जो आपके खुमर हैं, जो खिमार की जमा खुमर, इनको आप क्या करें, इनको अला जुयू पे, इनको आप ऐसे लाएं कि ऐसे ला के और इस तरह अपने ऊपर डालें, ताकि आपकी ये गर्दन ना नजर आए और आपके ये ब्रेस्ट जो है ये भी आपके छुप जाए। नेक्स्ट वर्ड किया है खमर के बाद, नेक्स्ट वर्ड है मैसिर। इसके रूट लेटर्स क्या है, या सीन रॉ, या सीन रॉ। इसका मतलब है किसी भी किस्म की गैम्बलिंग हो, किसी भी किस्म का गेम ऑफ चांस हो, किसी भी किस्म की बेटिंग हो, जो बेट लगाते हैं, जो शर्त लगाते हैं कि ये जीतेगा वो हारेगा, ये करेंगे वो करेंगे। और इससे क्या होता है, इसलिए पीपल एक्वायर वेल्थ, वो लोग इससे पैसे जमा करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स लूजिंग देयर वेल्थ। जब गैम्बल करते हैं उसमें अगर एक बंदा जीत रहा है तो कोई हार भी रहा है, उसने भी तो अपने पैसे डाले हुए हैं ना। अगर आप बेट लगाते हैं तो उसमें भी अगर 4 बंदों ने बेट लगाई है तो एक जीत रहा है तो बाकी 3 तो हार रहे हैं ना। ये लॉटरी होती है, लॉटरी में हम सब पैसे डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर 10 लोगों ने लॉटरी खरीदी उसमें से एक जीतेगा, मतलब यहाँ तो मिलियंस में खरीदते हैं लोग। तो इसीलिए ये वो चीज है, कोई भी गेम ऑफ चांस जिसमें कि आप खुद से नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपका चांस है, आपके पास कार्ड्स अच्छे आ गए, आपका वो घोड़ा जा रहा है वो जीत गया, या मैच हो रही है उसमें वो मैच में कोई जीत गया, ये सब चीजें लॉटरी भी है, ये सब गैम्बलिंग है, ये सब चीजें जो है ये मैसिर में आती है। तीसरा लफ्ज क्या था, अंसाब। अंसाब के रूट लेटर्स क्या है, नून सौद बा, नून सौद बा। इसका मतलब क्या है, स्टोन ऑल्टर्स। ये वो जगह है जहां पर वर्शिप करने के लिए, इबादत की नीयत से, अल्लाह के अलावा इबादत की नीयत से आप, या अल्लाह के साथ मिला के अल्लाह की भी कर रहे हैं लेकिन आप किसी और की भी करें, शिर्क भी करें, वो अल्टर्स हैं जहां पर आप किसी को सैक्रिफाइस ऑफर करते हैं। मतलब आप जाके वहां पर अल्लाह के अलावा या अल्लाह के नाम के साथ किसी और को मिला के आप कोई सैक्रिफाइस करते हैं या कोई चीज ऑफर करते हैं। जैसे आपने देखा है कि बुद्धिस्ट का क्या होता है, उनके पास उनका वो एक बना हुआ होता है, स्टैचू बनी हुई होती है या जो भी, और फिर उसके वहां ला के लोग ऑफरिंग्स रख देते हैं। हिंदुओं का देखा ऑफरिंग्स ले जाके रख देते हैं, मंदिर में भी रखते हैं, हर जगह पे रखते हैं। तो ये ऑफरिंग देना, सैक्रिफाइस करना, जो कि नहीं है हमारे इस दीन में इस तरह का, वो करते हैं। और वो उसके लिए प्लेसेस को डेडिकेट कर देते हैं कि भाई इस जगह पे आके आपने करना है। जब मुशरिकीन सैक्रिफाइस करते थे तो वो क्या करते थे, वो अपने आइडल्स के सामने जाके करते थे। हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास भी यही होता है, या तो आप जाके किसी मजार पे देख दे देते हैं। क्यों देते हैं, क्या अल्लाह ने कहा कि मजार पे जाके देख दो? नहीं, अल्लाह ताला ने कभी भी नहीं कहा कि मजार एक होली जगह है, मजार पे जाके आप देख खिलाएं, मजार पे जाके चादर चढ़ाएं, मजार पे जाके आप दुआएं मांगे, कुछ भी नहीं है। एक तो ये मरे हुए लोगों के लिए कर रहे हैं, दूसरा क्या करें, किसी पीर के आस्थाने पे, लोगों के पीर होते हैं, दे हैव देयर जिसको सेंटली पीपल कहते हैं ये लोग, कि भाई हमारे सेंट्स हैं, हमारे पीर हैं, उनके आस्थाने पे जाके बकरा दे देंगे, ये दे देंगे, अपना बेटा उठा के दे देते हैं। तो बाकी सैक्रिफाइस क्या करना है, बेटा उठा के, हम जानती हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना बेटा उठा के दे दिया। और बहुत सारे लोग करते हैं, अपने घर का सारा सौदा उठा के उनको लाके दे आते हैं। तो ये जो पीर मुरीदी ये सब है, और ये मजार और आस्थाने, ये सब कुछ हमें मालूम है कि अल्लाह ताला ने कहीं भी पूरे कुरान में नहीं लिखा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं कहा कि ये होली जगह है, ये सेक्रेट जगह है। ये वो जगह है जहाँ पे मुशरिकीन अपना सैक्रिफाइस करते हैं, ये ऑल्टर्स हो गया। फोर्थ वर्ड कौन सा यूज हुआ था, अजलाम। अजलाम के रूट लेटर्स हैं जा लाम मीम रा। जा लाम नहीं, रा कहां से आ गया, जा लाम मीम, ये मैंने गलत पढ़ लिया, जा लाम मीम, ये नेक्स्ट वाले का है रा।
सॉरी, तो जा लाम मीम का मतलब, इसका अजलाम का क्या मतलब है, ये इसका मतलब है इसके ये वो एरोस हैं। अब आप वैसे ही अगर तीर कमान से खेल रहे हैं, आप किसी शिकार को शिकार कर रहे हैं तो इट्स ओके। आप शूटिंग गेम में जा रहे हैं वैसे ही बच्चों के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, तो वो सब ठीक है। लेकिन ये वो तीर हैं, ये वो एरोज हैं जिनको आप या तो आप शूट कर रहे हैं, या तो आप उसको निकाल रहे हैं एक एक करके, उसमें से चुन रहे हैं टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड योर फॉर्च्यून नंबर 1, और या तो फिर टू डिसाइड अबाउट अ सर्टेन मैटर। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट अ सर्टेन मैटर, तो वो क्या करते थे जाहिलिया के दौर में, दे वुड टेक 3 एरोस, 3 एरोस लेते थे। एक पे लिखा था डू इट, एक पे लिखा था डोंट डू इट, और तीसरे पे लिखा था ट्राई अगेन। मुझे याद आया, अभी आपको बताते बताते याद आया, जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कोई अपनी गुनाहों को नहीं पब्लिकली बोलना चाहिए, लेकिन हम वो कहते थे कि हम जिन बुला रहे हैं, जिन बुला रहे हैं, और हम एक तरफ लिखते थे यस, एक तरफ लिखते थे नो, और फिर हम कहते थे अभी हम पता नहीं क्या पढ़ते थे, और उसके बाद फिर हम कहते थे अभी जिन आएगा और जिन इसको हिला, हम हाथ भी रखते थे ऊपर, उसके बाद क्या होता था अभी जिन जो है इसको हिला के जो है तो वो यस पे या नो पे लेकर जाएगा। तो ये उसी तरह की चीज है अस्तगफिरुल्लाह, कि डू इट, डोंट डू इट, या और फिर या ट्राई अगेन। तो देखिए ये अभी भी हमारे कल्चर में यूज होता है टू टेक सर्टेन डिसीजंस। अब ऐसा डिसीजन है कि अगर आपने जैसे अब मेरी अम्मी क्या करती थी, तो वो करती थी कि 3 चीजें हैं, समझे मैं हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, तो हम लोग 3 बहनों के लिए उन्होंने कोई चीज अगर देनी है, और समझे दोनों के कलर्स, तीनों के कलर डिफरेंट है, या दोनों की प्राइस में, तीनों की प्राइस में थोड़ी डिफरेंस है, या कोई अंगूठी है, कोई टॉप्स है, कोई कुछ है, तो जब उनको वो करना होता था तो वो क्या करते थे, वो कहती थी कि अगर मैं एक को दूंगी, दूसरी कहेगी उसको फेवर कर दिया, इसको कर दिया, तो वो कभी भी नहीं करती थी ऐसा। तो उनकी आदत थी कि वो किसी 3 पे रख देती थी नाम, कहती ये 3 नाम दे देती थी, और मेरा और मेरी दोनों बहनों का, और फिर बच्चे को बुलाती थी और कहती थी लो ये 3 चीजें हैं, इन पे एक एक नाम रख दो। कोई भी बच्चा उठा के 3 नाम रख देता था, तो वो ठीक है, दैट इज नॉट, उसमें किसी का, उसमें आपने डिसीजन करने के लिए आपने ऐसे रैंडमली ये किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस किस्म का करते थे कि किस वाइफ को लेकर जाना है, किस वाइफ को पीछे, तो दैट इज ओके, दैट इज अलाउड, दैट इज डूइंग इन इस्लाम। लेकिन ये देखना कि फ्यूचर या फाल निकालना जिसको हम कहते हैं, या हम आजकल क्या यूज करते हैं, आजकल डाइस यूज करते हैं, ये डाइस यूज किया, इसमें 6 आया तो ये 4 आया तो ये 3 आया तो ये, या लकी ड्रॉज निकालते हैं वो भी हैं। जो ये सारी चीजें क्या है, ये ओमेंस हैं, ये सुपरस्टिशन है, ये फाल निकालना और सब, तो ये चीजें जो है हराम है, अल्लाह ने बता दिया अजलाम ये हराम है, प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये नहीं सिर्फ हराम, कहते हैं उसके नजदीक भी नहीं जाओ, फजतनिबूहु, उनके नजदीक भी ना जाओ। और इसमें क्या चीजें इंक्लूडेड है, एस्ट्रोलॉजी, हमारी एस्ट्रोलॉजी, हम जो एक दूसरे से पूछते हैं तुम्हारा स्टार क्या है, तुम्हारा स्टार क्या है, तो ये ज़ोडिएक साइंस हैं, हॉरोस्कोप्स हैं, आपके लिए आ जाता है टीवी के ऊपर, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। भाई तुम्हें क्या मालूम कैसा रहेगा, इतना अच्छा होता है तुम ही अपने लिए हफ्ते अच्छे बना लो। दूसरा पाम रीडिंग, जो नजूमी होते हैं जो आपकी पामिस्ट्री करते हैं और आपकी पाम को रीड करके बताते हैं। आजकल क्या है, टैरोट रीडिंग्स, टैरोट रीडिंग्स, वो आप उस पर जाएं, ऑनलाइन जाए, आपको वो बताएगा रीडिंग्स पे कि क्या क्या होने वाला है। साइकिक रीडिंग्स, इनको भी अपने इन्होंने बनाए हुए होते हैं, जो आप सबको मालूम है वो बनाए। फिर चाइनीज एस्ट्रोलॉजी हो गई, वैदिक एस्ट्रोलॉजी होगी, मायन एस्ट्रोलॉजी होगी, हर किस्म की। न्यूमरोलॉजी, भाई ये इतने का हिंसा है, ये इतने हो गया, ये काउंट करो, और इस काउंट करके फिर वो आपको बताते हैं दिस मीन्स कि दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस मीन दिस इज नॉट। ये सारी चीजें तो किस्मत का हाल मालूम करने वाली बातें हैं, गैब का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी नहीं किसी को कहा कि मैं गैब का हाल जानता हूँ। तो ये सब चीजें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, 4 चीजों को कह रहे हैं, ये सब चीजें जो क्या है, दीज आर रिजिस। रिजिस का क्या मतलब, नापाक, दे आर फिल्थ। और ये किसका काम है, शैतान के कामों में से। सो फजतनिबूहु, आप इससे दूर रहे, सो दैट यू मे बी सक्सेसफुल। इसका थोड़ा सा हम एक और भी डिटेल में जा रही हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, आइडल वर्शिपिंग, ये जो था मुशरिकीन का, और डिवाइनिंग एरोस, आइडल के आगे ऑल्टर्स पे जाके हदिया देना या सैक्रिफाइस करना, ऑल दीज जो थी, दीज वर एस्पेक्ट्स ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया। प्री इस्लामिक, आप बैठिए, आइए। प्री इस्लामिक अरेबिया में मेरी बहन आई हुई है, इसीलिए मैं उनसे कह रही हूँ, मेरी बहन आई है, भांजा, भांजे की बीवी और उनके 2 बच्चे, तो मेहमान आए हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला कल और मेहमान आ जाएंगे, भतीजा भी आ जाएगा, और अस्मा की का
भांजा भी आ जाएगा इंशाल्लाह. So अब हम बैकग्राउंड को देखते हैं. इसमें बैकग्राउंड ये है कि ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, आइडल्स के आगे ये सैक्रिफाइस करना और डिवाइनिंग एरोस से निकालना, ये सब चीजें कब की थी? मैंने आपको बताया प्री इस्लामिक अरेबिया की थी, जाहिलिया के दौर की थी, और ये आपस में सब क्लोजली रिलेटेड भी थे. हमारे पास तो अगर जो लोग कर रहे हैं वो क्लोजली रिलेटेड शायद नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, अरब लोग, they would drink so much at the point of extravagance. बस पीते थे, वो कहते ना शराब के नशे में धुत हो जाते थे, और वो ये समझते थे कि ये जो ड्रिंकिंग है, इट्स गिविंग अस डिस्टिंक्शन, ये हमारे लिए, हमें एक हमारा लेवल ऊंचा कर रही है, हमें एक हाई लेवल की एक चीज है जो लोग करते हैं, गरीब लोग नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हम करें, इट वुड गिव देम डिस्टिंक्शन. और फिर ये वो लोग, आप देखिएगा उनकी पोइट्री को आप देख लें, लुक एट द पोइट्री ऑफ द जाहिलिया अरब्स, उसमें दे praise it, they are proud of it, और वो बताते हैं कि हम इस तरह ड्रिंक कर रहे हैं, उस तरह ड्रिंक कर रहे हैं, और उनकी पोइट्री भरी होती थी इससे. और फिर उनकी जो सोशल गैदरिंग्स होते थे उसमें फिर ये होता था, आप सोचें ड्रिंकिंग की गैदरिंग है, उसमें आप ड्रिंक कर रहे हैं, उसके साथ फिर एनिमल्स को स्लॉटर भी कर रहे हैं, और वो स्लॉटर उनका कहाँ जाके होता था, मुशरिकीन थे तो कहाँ स्लॉटर होता था, इट वुड बी स्लॉटर्ड एट सम ऑल्टर, और फिर उसको इमीडिएटली कुक किया जाता था और उनको सर्व किया जाता. आप यकीन करें कि इस क्लास की तैयारी से पहले मुझे ये सब नहीं मालूम था, ये एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं था. और फिर वो एनिमल्स जो स्लॉटर किए जाते थे वो आइडल्स के फीट पे किए जाते थे, और उसके ऊपर जो है, उस आइडल के ऊपर ब्लड जो निकलता था सैक्रिफाइस का, वो उसको उसके ऊपर छिड़का जाता था. फीट ऑफ आइडल्स जो है उनके 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 ऊपर उस ब्लड को छिड़का जाता था जो आपने सैक्रिफाइस किया होता था. ऐसे सोशल इवेंट्स में फिर वो लोग डिवाइनिंग एरोज भी यूज करते थे. यानी क्या कि अब इतना सारा गोश्त आ गया, वी हैव सैक्रिफाइस्ड दिस एनिमल, तो हमारे इस मीट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो हर एक का शेयर कैसे होता था, वो एरोस डलती थी 1 2 3 4 या इतने % जो भी वो डालते थे, और जिसका हाईएस्ट एरो आया उसको जो लार्जेस्ट शेयर मिलता था. और मैं ये भी पढ़ रही थी कि उसमें ये भी था कि समझे कि अल्लाह ना करे कि मैंने किया, लेकिन जो करने वाला है, जिसने सबसे ज्यादा शेयर दिया था उस एनिमल के पैसों में, जरूरी नहीं कि उसको ज्यादा मिले. उसने इतना सारा शेयर दिया, लेकिन हो सकता है जिसने कुछ भी ना दिया उसको मिल गया, क्योंकि ये तो पूरा गेम ऑफ चांस है. तो देखिए कैसी कैसी लघु चीजें होती थी. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस तमाम फाउल प्रैक्टिसेस थी, ये सब शैतान की प्रैक्टिसेस थी, जो कि हमारा बदतरीन दुश्मन है. ही इज आवर वर्स्ट एनिमी, इससे दूर रहें. और हमने ये भी देखा, अल्कोहल के बारे में भी हमने देखा था, आपको याद है हम पहले पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेज में प्रोहिबिशन नहीं आई थी, अल्कोहल नहीं, उसको हराम नहीं किया गया था. सूरह बकरा में हमने पढ़ा था, सूरह नंबर 2 आया नंबर 219, हमने देखा था कि देयर इज अ ग्रेट सिन in it and also some benefit, but their sin is greater than their benefit. अब लोग तो एक उन्होंने, they went on drinking, they kept on drinking, उन्होंने कहा कि भाई इसमें मना थोड़ी है, इसमें sin भी है और इसमें benefit भी है. तो उस वक्त वो कहते थे बस ठीक है. उसके बाद जब until एक वक्त आया जबकि एक दिन एक सहाबी नमाज पढ़ा रहे थे, और उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते, वो इमाम थे उस वक्त, लीड कर रहे थे प्रेयर को, and then he mixed some आयात. जब वो हुआ तो फिर सूरह निसा की आया नंबर 43 आई थी. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि आया नंबर 43 में अल्लाह ताला ने इससे टफ कमांड दिया था, और ये कहा था कि ए लोगों, जब ईमान वालों, जब आप लोग डू नॉट अप्रोच प्रेयर व्हाइल यू आर इंटॉक्सिकेटेड, यू आर इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन अंटिल यू नो व्हाट यू आर सेइंग, जब तक कि आपको ये ना यकीन हो कि आप सही बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. तो उस वक्त भी लोग, उसमें भी मना नहीं हुआ था. फिर लोगों ने क्या किया कि बस सलाह से पहले जो है हम नहीं पिएंगे, सलाह से कितने घंटे पहले हम नहीं पिएंगे, ताकि हम सलाह जब करें, जब हम नमाज पढ़ें तो हम सही हालत में हो. ये उन्होंने शुरू कर दिया. फिर उसके बाद जब ये आयत अभी जब रिवील हुई सूरह माइदा की, तब अल्लाह ताला ने क्लियरली कह दिया स्टे अवे फ्रॉम इट, देन दे स्टॉप ड्रिंकिंग. तो अल्लाह ताला ने स्टार्ट किया था आयत किस तरह, ओ यू हू बिलीव, कहा किसको है, मुझे और आपको कहा है, मुसलमानों को कहा है. अगर हम बिलीव करते हैं, अगर हम सही बिलीवर्स हैं, हम क्लेम करते हैं, तो वी बेटर टेक हीड फ्रॉम दिस. अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह हैज कर्स्ड, अल्लाह ने लानत भेजी है किस चीज को, द खमर इटसेल्फ, द इंटॉक्सिकेंट इटसेल्फ, and the one who drinks it, और जो उसको खाता है या पीता है, and the one who provides it to others, और जो दूसरों को देता है, and the one who sells it or buys it, जो खरीदता भी है और जो बेचता भी है, and the one who squeezes the grapes,
यानी जो ग्रेप स्क्वीज करके वाइन के लिए तैयार करता है, and the one who causes others to squeeze grapes, यानी कि एक बंदा खुद भी कर रहा है और दूसरों को भी कर रहा है, मतलब उसका बिजनेस है ये, वो दूसरों से भी ये करा रहा है to make wine, ठीक है ना, and for the one who carries it, जो लेकर जाता है, and to the one to whom it is carried. तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये अहमद इब्न इमाम हम्बल जो है ये उनकी किताब में है और अबू दाऊद की। उन्होंने कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो भी किसी तरह से भी इन्वॉल्व होगा इन सर्विंग, देखिए मैंने ऐसे भी बहुत लोगों को देखा है, वी वर लिविंग इन बैंकॉक फॉर सो मेनी इयर्स, तो आपको पता है कि वहां पर हमारे इतने सारे नॉन मुस्लिम्स थे। अब जो मुस्लिम्स थे, अब हम यूनाइटेड नेशंस में थे तो उसमें ये होता था कि सारे जो कॉलीग्स होते थे ज्यादातर वो तो मुस्लिम नहीं थे ना, मतलब गिनती के मुस्लिम थे वहां पर। तो जब उनको दावत पे कोई बुलाता था, हम तो नहीं ऐसा करते थे, लेकिन जब कोई बुलाता था मुसलमान हमारे, तो वो कहते थे कि भाई हम तो नहीं पीते लेकिन हम उनके लिए हमने मंगाया। या यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट, यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव इवन अ गिफ्ट ऑफ वाइन का बॉटल आप किसी को गिफ्ट कर दें, या आप ड्रग्स किसी को गिफ्ट कर दें, ये सब आपको गिफ्ट करने की भी इजाजत नहीं है। द वन हु बाइज, द वन हु सेल्स, द वन हु गिफ्ट्स, द वन हु टेक्स, हर एक को उसका गुनाह मिलेगा। एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो लोग शराब पी रहे हैं, जो लोग इंटॉक्सिकेंट्स कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेंट ले रहे हैं, मतलब नॉर्मली टेबल पे जब अगर आप डिनर टेबल पे बैठे होते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं दावत होती है, तो उधर क्या होता है, उधर नॉर्मली ड्रग्स तो नहीं हो रहे होते ना, लेकिन ड्रिंक्स तो हो रहे होते हैं ना। तो अगर वहां पर ड्रिंक्स हैं तो उसके साथ आप बैठ के खाना नहीं खाओ, उस टेबल पे ना बैठे। अब उस हॉल में तो आप बैठे होंगे, हॉल में तो कोई ना कोई पी रहा होगा, लेकिन उस टेबल पे कम से कम ना बैठे। तो हमारे से ये तो इतना बड़ा जैसे हमारे डाइनिंग रूम होता था, और जाहिर है कि लोग तो पी रहे होते थे, मुसलमान तो हम गिनती के होते थे, हम उनके टेबल पे नहीं बैठते थे। बैंक्वेट्स होती थी, चीजें होती थी, हम अलग बैठते थे। तो ये किसमें, अबू दाऊद में है, तिरमिजी में है, दारी में भी है, और अहमद इब्न हम्बल की उसमें भी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो इंटॉक्सिकेशन है और ये जो प्रोहिबिशन है, ये जो हराम है, ऑल काइंड्स ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स पे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, एवरी इंटॉक्सिकेंट इज खमर एंड एवरी इंटॉक्सिकेंट इज प्रोहिबिटेड। देखिए, एवरी इंटॉक्सिकेंट, चाहे वो कुछ भी हो, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, कुरान में नहीं लिखा हुआ है, एंड एवरी इंटॉक्सिकेंट इज प्रोहिबिटेड। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रिंसिपल भी बताई एक और, कि जो चीज इंटॉक्सिकेट करती है आपको लार्जर क्वांटिटी में, तो उसकी अगर आप स्मॉल क्वांटिटी भी लें तो इवन दैट इज प्रोहिबिटेड, दैट इज प्रोहिबिटेड। हम कहते हैं ना, नहीं हम थोड़ा सा पीते हैं, सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, आधा ग्लास पीते हैं, क्वार्टर ग्लास पीते हैं, और हम ड्रंक नहीं होते और हम सोशल ड्रिंकिंग। उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो लार्ज क्वांटिटी में आपको इंटॉक्सिकेट करता है, इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इट इज प्रोहिबिटेड। ये भी अबू दाऊद में, इब्न माजा में, अहमद इब्न हम्बल के उसमें है। तो इन द टाइम ऑफ द प्रॉफिट जो है, उस वक्त कोई भी स्पेसिफिक पनिशमेंट हैड नॉट बीन लेड आउट फॉर ड्रिंकिंग। तो अगर एक बंदा पकड़ा जाता शराब पीते हुए और ड्रंक हो गया था, तो उसको क्या करते थे, उसको जूते उठा के मारते थे, उसको मुक्के मारते थे, उसको कोड़े लगाते थे, और जो ट्विस्टेड क्लॉथ होता था ना उसके कोड़े लगाते थे, और पाम स्टिक्स, उधर तो अरब में तो पाम स्टिक्स होते हैं, तो उसकी छड़ी लेके उससे मारते थे, यानी कुछ भी करते थे, जूते मारो, मुक्के मारो, कोड़े मारो, स्टिक से मारो, कपड़े से मारो, जो भी। और फिर ये भी नहीं था कि उस वक्त क्या, फिर आस्ते आस्ते मैक्सिमम नंबर लगा दिया कि देखें आप लोग अगर कोड़े लगा ही रहे हैं तो मैक्सिमम जो है 40 कोड़े हो, 40 लैशेस से ज्यादा ना हो। फिर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही स्टार्ट हो गया था। फिर एट द टाइम ऑफ अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये पनिशमेंट कंटिन्यूड टू बी 40 लैशेस। फिर at the time of Umar radiallahu ta'ala anhu, the punishment initially remained at 40 lashes, लेकिन जब उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि 40 कोड़े खा भी लेते हैं फिर भी वो ठीक नहीं होते हैं, तो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस पनिशमेंट को बढ़ा के 80 लैशेस कर दिया। कंपेनियंस के साथ उन्होंने मशवरा किया, आफ्टर कंसल्टिंग विद द कंपेनियंस, उन्होंने इसको 40 से 80 लैशेस कर दिया। और ये कंसिडर किया गया कि ये प्रिस्क्राइब्ड लीगल पनिशमेंट है फॉर ड्रिंकिंग। और किन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया? इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, और अकॉर्डिंग टू वन ट्रेडिशन इमाम शाफी। 3 इमामों ने इसको कहा कि हाँ ठीक है ये है। लेकिन इमाम अहमद हम्बल और कुछ ट्रेडिशन जो इमाम शाफी के हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये 40 लैशेस ही रखें। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि 80 लैशेस है कि 40 लैशेस हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, ये ड्यूटी है इस्लामिक गवर्नमेंट की कि वो इस प्रोहिबिशन को एनफोर्स करें।
बहुत खुले आम शराब खाने और शराब की इजाजत ना दें। और फिर यही है कि इसको जो अगर पकड़ा जाए कि उसने वो, देखो अपने घर के अंदर जो पिएगा उसको कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन जो बाहर पिएगा, पब्लिकली पिएगा या ड्रंक होके निकलेगा, उससे ये है कि ये हुकूमत को ये करना चाहिए, हमारे मुल्क में भी करना चाहिए, पाकिस्तान को भी करना चाहिए कि देखें जो अगर ड्रंक हो गया तो उसको ये लैशेस पड़ेंगी। चल एक एक आयत और कर लेते हैं, बहुत छोटी सी आयत और इससे कनेक्टेड है। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुम अल-अदावता वल-बग़दाअ फिल ख़म्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। इसके साथ ही कनेक्टेड है कि इन्नमा के ओनली क्या इन्नमा युरीदु, ओनली इंटेंट्स अश-शैतान द सैटन कि वो क्या करे, अन युक़िया बैनकुम, दैट ही पुट्स बिटवीन यू, ओनली इंटेंट्स द शैतान दैट ही पुट्स बिटवीन यू। और ये जो है युक़िया ये मजहूल है, इसका नहीं, दैट ही पुट्स बिटवीन यू नहीं, वक़ा ये इसके रूट लेटर्स हैं वाव काफ आइन, लेकिन इसका फॉर्म 4 है। औक़ा युक़िउ ईक़ाअन, औक़ा युक़िउ ईक़ाअन, दिस इज फॉर्म 4 कि वक़ा से निकला है कि ही वांट्स टू पुट, अल्लाह ताला सॉरी शैतान इंटेंट्स एंड शैतान वांट्स टू पुट एनमिटी बिटवीन, आगे पढ़ती युक़िया बैनकुम अल अदावत वल बग़दा, अदावा क्या है, दुश्मनी, एनमिटी, बग़दा ग्रज या हेट्रेड, फिल ख़म्रि वल मैसिर, थ्रू इंटॉक्सिकेंट्स एंड थ्रू गैम्बलिंग। अब इसको मैं उर्दू में बताती हूँ। यही चाहता है शैतान कि वो डाल दे आपके दरमियान, यही चाहता है शैतान कि वो डाल दे आपके दरमियान क्या चीज, अदावत या दुश्मनी और बुग़्ज़ या नफरत, जो वर्ड आपको पसंद है आप यूज कर लें, शराब और जुआ के जरिए या नशा और जुआ के जरिए। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, एंड ही स्टॉप्स यू, वो क्या चाहता है, दैट ही स्टॉप्स यू अन ज़िक्रिल्लाह, ही प्रिवेंट्स यू फ्रॉम द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, व अनिस सलाह एंड फ्रॉम प्रेयर, और वो रोक दे आपको, वो ये चाहता है शैतान को आपको रोक दे अल्लाह के जिक्र से और नमाज से। और यसुद्दकुम के रूट लेटर्स क्या, स्वाद दाल दाल, स्वाद दाल दाल, सद्दा यसुद्दु सदूदन, किसी को रोकना। तो वो चाहता है कि वो प्रिवेंट करे आपको अल्लाह के जिक्र से और सलाह से। फहल अंतुम मुंतहून, क्वेश्चन है, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, सो विल यू बी द वंस हु एब्सटेन, तो क्या आप रुक जाने वाले हैं। और ये मुंतहून नून हाया या आप कर चुके हैं, नहीं अनिल मुनकर, यानी किसी को एब्सटेन करना जो है। तो इसको एक क्लियरली एक जल्दी से इसकी तफसीर कर लेते हैं। युक़िया मैंने आपको बताया कि इट इज फ्रॉम वाव काफ ऐन एंड इट मींस टू अकर और टू हैपन, यानी शैतान ये चाहता है कि वो डाल दे, वो हैपन कर दे, वो अकर करा दे, क्या चीज, ताकि एनमिटी जो है या दुश्मनी है या अदावत है या नफरत है या बुग़्ज़ है वो लोगों के दरमियान करे। और इसीलिए वो क्या करता है, लोगों को टेम्प्ट करता है, उसका तो मकसद ही है, तो वो टेम्प्ट करता है ताकि लोग इन चीजों को देख के दे फॉल फॉर दीज थिंग्स, ताकि वो चीजें उठा लें। तो फिर ड्रंक का, जैसे आपको मैंने अभी भी बताया कि वो खुद भी मिसबिहेव करता है, दूसरों के साथ भी को भी अब्यूज करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। सिमिलरली जो लोग जीतते हैं, कुछ लोग जीतते हैं गैम्बलिंग में, कुछ लोग हारते हैं गैम्बलिंग में। अब जो हार जाता है गैम्बलिंग में वो क्या करता है, ही स्टार्ट्स हेटिंग द वन हु विंस। वो बोलेगा देखा मैंने भी खेला, इससे भी खेला, लेकिन वो जीत गया, और गालियां और ये और वो, और फिर वो क्या करता है, उसको हेट करता है और उसको उसके सारी उससे ग्रज कर लेता है, अब उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसी तरह जो जीत रहा होता है, जो जीतता है उसके लिए क्या पॉसिबल है कि वो तो जीत गया, लेकिन दूसरे लोग जो हैं जो हार गए, और दूसरे लोग जो कहते हैं हमारे पैसे चले गए और ये जो है ये जीत गया, वो ये कंस्पायर कर सकते हैं, वो ये प्लॉट कर सकते हैं कि उसके ऊपर उसको तंग करें या उसको मार डालें या उसको तंग करें या उसका पैसा कहीं से निकाल लें, उसके पैसे को चोरी कर लें या कुछ भी कर लें। मतलब दे विल ट्राई टू हार्म दैट गाय, दे माइट, हमेशा नहीं होता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब चीजें जो है instead of strengthen करना love between people, it strengthens enmity या animosity between people। और फिर क्या अल्लाह ताला ने बता दिया मेन रीजन क्या है, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह। द मेन रीजन है या अदर रीजन आप कह लें कि अगर फॉरबिडन थिंग्स में हम इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। एक बंदा इंटॉक्सिकेटेड है, कैन ही रिमेंबर अल्लाह, नो। अगर वो रिमेंबर अल्लाह करेगा भी तो वो भी गलत तरीके से करेगा। तो ये एक्शंस जो हैं हमको बिलीवर्स को, मुझे और आपको, ये चीजें हमको रोकना है, और हम शैतान जो ट्रैप में हमें फंसा रहा है उससे हमें दूर रहना है। एंड दिस इज व्हाट शैतान वांट्स कि हम अपना टाइम अल्लाह के जिक्र में ना गुजारें।
پھر اللہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, یعنی کہ کوشچن ہے کہ تمام چیزیں ہیں. آفٹر ایکسپلیننگ the dangers of intoxicants and gambling, اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ will you still consume them, will you still continue to consume these. ایک کلیئر وارننگ ہے, بہت کلیئر وارننگ ہے ہمارے لیے, آپ کے لیے اور ہماری تمام مسلمانوں کے لیے وارننگ ہے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو امیڈیٹلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا we abstain, او رب we abstain, یا رب بھی ہم رک رہے ہیں, ہم بول گئے میں نہیں, ہمیں سب کو ہم بولتے ہیں کہ سب رک جائیں. اور مسلم میں یہ ریکارڈڈ ہے کہ ابن عمر, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ the messenger of Allah said کہ every intoxicant is khamar and every intoxicant is unlawful, سب حرام ہے. اور پھر آگے جو خطرناک بات ہے, ٹھیک ہے یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا, whoever drinks khamar, جو کہ خمر لیتا ہے, انٹاکسیکنٹ لیتا ہے, and dies while addicted to it, اور اگر وہ اس کا عادی ہے نشے کا اور وہ اسی میں مر گیا without repenting, توبہ کرنے سے پہلے from drinking it, he will not drink it in the hereafter. آخرت میں اس کو شراب طہورہ نہیں ملے گا, اس سے وہ محفوظ رہے گا. اب آج لوگ یہ بھی کہیں تو کیا ہوا, ہم دنیا میں لے لیں گے, ہمیں آخرت کی کیا ضرورت ہے. But they don't know کہ اس شراب میں کیا مزہ ہے, اس شراب میں کیا فائدے ہیں, وہ شراب جو ملے گی جنت والوں کو اس میں کیا ہے. تو اس شراب سے بچیں, اس نشے سے بچیں, اس جوئے سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے اللہ کے احکام کی پابندی کر سکیں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس سے ہم دور رہیں, اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ چیز ہم کنزیوم کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Any questions? السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہے نا, جیسے بتا رہی تھی تم کہ اگر کوئی جیسے اللہ سے پرومس تو نہیں, ایسے جیسے کوئی چیز ہو رہی ہے کہ اللہ یہ چیز کر دیں گے تو ہم یہ کام کریں گے, مگر آپ نے وہ کام نہیں کیا, کوئی قسم نہیں کھائی, منت مانی. ہاں تو منت کی طرح ہو گیا, تو کیا وہ اگر نہیں کر سکے تو کیا کریں, صدقہ دے دے, کیا کریں؟ سب سے پہلے کہ منت کرنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ جب آپ اللہ سے ایک چیز مانگ رہے, are you doing a deal with Allah, کہ اگر آپ نے یہ کیا, سب سے بڑی بات یہ کہ if you are saying کہ اللہ نے اگر یہ کر دیا تو میں یہ کروں گی, اللہ نے یہ کر, سمجھیے کہ مثلا کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کر دیا, یہ ہو گیا, فلاں کا یہ ہو گیا, تو میں سمجھے اتنا ہی کہہ دیا کہ میں 4 روزے رکھوں گی, 10 روزے رکھوں گی, میں عمرہ کروں گی, میں اتنے نفل پڑھوں گی, whatever you have made, it is a منت, right? تو وہ منت اللہ کے ساتھ نہیں کرنا. You are not supposed to have a bargain with Allah. You are supposed to do it before it happens. مطلب اگر آپ کوئی کرنا ہی ہے کوئی چیز, آپ کہتے ہیں کہ میں روزے رکھوں گی یا میں یہ پیسے دوں گی, اس سے پہلے آپ پیسے دے دیں, آپ روزہ رکھ لیں اور آپ کہیں یا اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے, اس کے عوض جو میں نے نیکی کی ہے میں آپ سے یہ مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ یہ کر دیجئے. اور اگر وہ آپ نے منت توڑ دی تو پھر وہ بھی اسی میں آتا ہے جو کہ آپ نے قسم کھائی ہے. آپ نے غلط منت مانی ہے لیکن آپ کو اسے توڑنا پڑے گا. جب آپ توڑیں گی تو پھر اگر آپ کو پتا چلے کہ ساؤنڈ نہیں تو آپ کو توڑنا, جب توڑیں گی تو پھر آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 لوگوں کو کپڑے پہنانے یا پھر 3 روزے رکھنے. like ignorance میں, like I am talking about like so many years back. So ایسا کرا تو اس کے لیے بس 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یہ بول رہی ہو. Okay. Because to take you out of it. بس ایسا نہ تو یہ میں نے آپ کو بولا نا, میں نے بھی تو آ کے کسی کو کہہ دیا نا اس میں, اچھا ٹھیک ہے میں قسم کھاتی ہوں آئندہ کبھی بھی نہیں مشورہ دوں گی, لیکن اس سے کوئی منت نہیں تھی, لیکن پھر بھی میں نے کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ میں I am held accountable, تو پھر جلدی سے میں نے کھلا دیا. Any other question? جزاک اللہ خیر. Any questions? اور کسی کو کوئی question ہی نہیں ہے؟ سب سوچ میں مجھے ایک کوشچن ہے. جی جی بولیے. جو اب ہنا نے کہا کہ بھئی ہم بعض دفعہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, تو اس کے ریلیٹڈ مجھے کوشچن پوچھنا ہے کہ اگر ہم نے یہ بولا ہو اور ہم بھول گئے ہوں اور ہمیں یاد نہیں ہو تو ہم پھر کیا کریں؟ بعض دفعہ وہ اتنا پرولونگ ہو جاتا ہے کہ ہمارے دماغ سے وہ بات نکل جاتی ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ وہی میں نے بھی کہا بی کیئرفل. تو آپ اپنے آپ کو, مجھے
ایسا لگتا ہے کہ بھول نہیں جائیں گے آپ. جب آپ کو ایسی کوئی چیز ہوگی آپ کو یاد آئے, کبھی نہ کبھی آپ کو پرک کرے گی. جب وہ چیز ہو رہی ہوگی, ٹھیک ہے آپ بھول گئی, اللہ تعالیٰ بھولنے کو معاف کرتا ہے نا. اگر آپ بھول گئی, اگر آپ بالکل ہی بھول گئی ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا بھول پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. اسی لیے ایک تو نمبر 1 یہ کرنا نہیں ہے. اگر آپ نے کر لی اور آپ بالکل بھول گئی ہیں تو آپ اللہ سے کہیں اگر میں نے کچھ ایسا کیا تھا تو مجھے معاف کر دیں. اور پھر بھی جیسے ہنا پوچھ رہی ہے تو اس کے لیے بھی اگر آپ کو موقع ہے تو آپ کہیں اگر میں نے کچھ کیا تھا کم از کم میں 10, آپ لوگ تو 10 کو کیا, آپ لوگ تو 100 کو کھانا کھلاتے ہیں. جب آپ کھانا کھلا رہے ہو, ابھی رمضان آ رہا ہے, رمضان میں کھلا دے, کتنا آسان ہے, ڈبل بالکل بالکل It is the best time. ابھی آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو بھی دے سکتی ہیں, آپ لوگ اپنے مسجدوں میں دے رہے ہیں, آپ لوگ دوسری مسجدوں میں دے رہے ہیں, it is the best time. تو ابھی فوڈ بیگز جو بن رہے ہیں, اپلفٹ بنا رہا ہے, اکنا ریلیف بنا رہا ہے, یہ سب might as well make use of this. یہ تو اچھا چانس ہے, 10 مسکینوں کو کھانا بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 10 لوگوں کا پیکج جو ہے وہ بھی آپ کا ہو جائے گا, اور پھر ساتھ ساتھ اور ایک کے بدلے 2 کر لیں. اللہ میرے ذمہ اگر کوئی بھی ایسا رہ گیا, دیکھیں جب میں منڈے تھرسڈے کے روزے رکھتی ہوں تو میں ساتھ یہ بھی کہتی ہوں مجھے پتہ ہے میرا الحمدللہ کوئی روزہ چھوٹا ہوا نہیں ہے, جو چھوڑے تھے وہ رکھ لیے. پھر بھی میں یہ ساتھ ہر دفعہ کہتی ہوں, ایوری ٹائم, ایوری منڈے ایوری تھرسڈے, ایسے یا اللہ میری زندگی کا کوئی بھی روزہ اگر میرے میں باقی رہ گیا ہو جس کا مجھے نہیں اندازہ ہے, یا اللہ یہ آج کا روزہ اس کو کمپلیٹ کرا دے. تو یہ دس از لائک ہمیشہ کے لیے. جس طرح ہم نفل پڑھتے ہیں, ہم سنت پڑھتے ہیں, ہمارا کوئی فرض نماز اگر باقی رہ گئی تھی, it will be covered by these. تو keeping that principle in mind, I believe, ابھی میں نے کسی شیخ سے نہیں پوچھا, but I believe it should be okay کہ آپ ایسا ہے نا. Does it make sense, زینت؟ جی بالکل بالکل بالکل. اور کوئی سوال؟ We still have 3 minutes. کسی کو پوچھنا ہے, زیادہ بھی جا سکتے ہیں, زیادہ سوال ہیں تو no problem. کوئی سوال؟ کبھی کبھی ہم سوال خالدہ کو بھی بول دیا کریں, خالدہ جو ہے ہمیں ڈاکٹر صدیقی سے پوچھ کے جواب دے دیا کریں گے, ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یا نگار کو بول دے تو نگار جو ہے وہ شیخ فرحان سے پوچھ کے بتا دیں. الحمدللہ میرا اپنا بیٹا شیخ بھی ہے, مفتی بھی ہے, لیکن پھر بھی سب کو کہتی ہوں کہ پوچھ لے کریں آپ لوگ. اور کوئی سوال نہیں ہے تو لیٹس اینڈ. ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک There's no اللہ. class in Ramadan, right? They will رمضان میں نے آپ کو بولا نا کہ دیکھیں آئی ایم لیونگ انشاءاللہ آن, میں نے آپ کو ڈیٹس ابھی کل میں نے بیٹھ کے اپنا سارا وہ بنایا ہے. آئی ایم لیونگ فار عمرہ انشاءاللہ آن the 21st of March. ٹھیک ہے, رمضان is probably starting 11th. اب وہ 9 دن میں ہم کتنا پڑھ لیں گے, 1 ہفتے کا مس ہوگا نا صرف. right, yeah. ہاں, تو اگر سوال ہیں کچھ آپ لوگوں کے روزے سے متعلق یا زکات سے متعلق, اچھا should I post میری جو روزے والا پرانا تھا وہ میں پوسٹ کر دوں یہاں پر, یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوسچن آنسر سیشن رکھے؟ Even you want that, we can do a question answer session on Ramadan, fasting and everything. بہت سارے لوگ ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرانے گئی, میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا, میں نے یہ کیا, میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا, انہیلر کے متعلق اور انٹرنل چیک اپ کے متعلق اور ایسی چیزوں کو لوگ پوچھتے رہتے ہیں. تو پلیز آپ اگر ایسا کوئی آپ کا ہے سوال ہے تو وہ بھی آپ بتائیں. We can have a question answer session. There are many sessions going on ہر طرف سے, تو وہ بھی ہیں. اور لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. I'm running. آپ لوگ بولیں گے جلدی مت کرو, but I'm trying my best کہ رمضان سے پہلے I finish سورہ مائدہ. پرے کریں کہ ختم ہو جائے, because آیا نمبر کس پہ آج ہم تھے, ہم نے ابھی کیا کیا, آیا نمبر 91 کیا ابھی تک. اچھا, تو ابھی تو کافی ہیں, 120 ہیں آیات. لیکن میں Doesn't matter. I know you guys say that, but I want to do it. Doesn't matter. You know, I want to finish something. میں کہتی ہوں یہ زندگی تو پتہ نہیں آج بھی جا سکتی ہے, but جو بھی نصیب ہے وہ کر کے جائیں گے, وہ اللہ کو معلوم ہے نا اپنی نیت کیا ہے. That's all. Allah knows everything. Okay. ٹھیک ہے امینہ, آپ بھی پھر وہ آ گئی ہوں گی, آپ کی آنے والی ہوں گی, آج 20th ہے, پھر آپ پوچھ کے وہ بھی بتا دیں کہ کس دن رکھنا ہے, اگر رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے, اور یو وانٹ ٹو کیپ آفٹر رمضان, وٹ ایور اٹ سوٹس یو, تاکہ وہ بھی دن کو ہم بیچ میں انکارپوریٹ کر لینا انشاءاللہ. اوکے, Alright. ایک کیئر, دعا میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جزاک السلام اللہ. علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. Everybody, Allah. Assalamu alaikum.